that comes to your mind when we talk about friendship? Happiness, company. Okay. And what does success mean to you? Success means satisfaction. What would be that one childhood memory that is so cherished in your heart that you still feel so connected to it? I strongly remember the first residential area in which I have lived in Delhi. Wow. If you were to write the autobiography of your life, which one would be your favorite chapter? My favorite chapter would be the chapter of struggles. Oh. And last page आपकी autobiography में आप क्या लिखेंगी? To die happy and contented. A very warm welcome to all our viewers from all across the country, from all across the globe. We at Let Urja Talk have always been bestowed by the likes of personalities who live through the day and become with each passing second a better version of themselves, inspiring many, encouraging all. And today our esteemed guest for the show is none other than Dr. Pooja Diwan, an utterly bewitching, ravishing, a diva, multifaceted, multi-talented, multi-dimensional. मैं जितने भी वर्ड्स उनके लिए कहूँ बहुत कम हैं. आज हमारे साथ जुड़ी हैं लेट ऊर्जा टॉक में डॉक्टर पूजा दीवान. मोस्ट वेलकम टू यू ऑन द शो. Thank you so much for inviting me on your show. It's indeed a pleasure and a privilege. It might be a pleasure and privilege for you. It's an honor for us to have you on board. So, talking about Dr. Pooja Diwan, she is a gynecologist and obstetrician and also specializing in test tube baby treatment, laparoscopic keyhole surgery. That's right. And so much more in her kitty. And as the program rolls on, we are going to discover so many new talents about her, about herself and her fairy tale journey. So welcome you once again. Thank you indeed. To begin with this fairy tale journey, let me tell our viewers that Dr. Pooja Diwan has scorched the ramp. She has been crowned as Mrs. Grahalakshmi Kalinga Sundari. Well, most aptly defined. This is like the most beautifully defined personality that I have it right now. And if you could just wear the sash and the crown so that we could actually have the feel of that divine aura that you have. I'll indeed do that, and as you rightly mentioned, it is Grahalakshmi Mrs. India 2022 as well as Mrs. India Kalinga Sundari 2022. Wow. And a subtitle crown of Mrs. Tunnel India from Grahalakshmi for 2020. So am I talking to Dr. Pooja Diwan or the beauty pageant or the beauty queen winner? What would I say? It's me, but let me come back to you in my new avatar. New avatar, definitely. The sash and the crown in place. Absolutely. So ladies and gentlemen, on your screen, the Dr. Pooja Diwan. Thank you. So now as we talk about your journey, first of all, I would like to know one of your aha moments where you actually felt on top of the world. Like which of that one moment you felt, yes, I own the world. I don't think I own the world, but yes, I have had aha moments, and not just one. I think there are now two aha moments. One was almost 2 decades back, in fact 2 decades back, when I became the member of the Royal College of Gynecologists at London. That was a competitive exam at the international level, and I was amongst the youngest to have been chosen. So I finally figured out that I cracked it, and that was my goal, and I had set an age limit for myself. So professionally, that was something which to date, I mean now I'm fellow of the Royal College upgraded. Oh wow, wonderful. But to date, it is one merit score which makes me feel a sense of belonging. That is just so commendable. You set a goal, you set a time limit for yourself, and you achieve it. I mean, it's like a living memory, living dream that you are actually living. Yes, I mean, I had set in some time bars for myself. That's I thought that would be the end of my journey of academics, but it has been The there with me beginning. till 6 months back as well, when I Right. did my fellowship in aesthetic medicine from Germany. I mean, that includes cosmetology, aesthetic medicine, and all the beauty treatments and beauty surgery, things like that. And the second aha moment Yes. was this unexpected, unthought of
a dream which was never existed, a vision okay. which was never existent, and that was the beauty pageant. You so rightly deserve that crown. I think that crown feels privileged to be, resting on your head. Absolutely, absolutely. And you being such an acclaimed doctor, like practicing doctor, and then besides that, you've been doing so much. You are, let me tell our viewers that Dr. Pooja Devan is a trained classical singer, trained classical dancer as well, and then walking the beauty pageants and also recording for All India Radio and so many more channels. So, I mean, how do you juggle all this? How do you manage it all? I don't think I manage it. I think there is some divine force behind me which kind of manages it. My duty on the ground, on Mother Earth, is just to enact that role, play that part, and put things in place. As far as true juggling is concerned, there used to be something called as me time, which was supposed to be at least relaxation time, not just introspection time. But then with so many things happening all around me, I think every time is me time, because if I don't consider the task that I'm doing as my time and my task and something that I love and something that I wish to pursue, it would be burden. Another question pops up in my mind, that being an acclaimed gynecologist and a practicing one too, and you have this erratic work schedules. So how do you manage it all? I mean, doesn't that affect your all that you are doing? Well, work takes away a lot of time space. Absolutely, I'm sure. Being a gynecologist, one can still have some elective times as an IVF specialist and as a surgeon. But as an obstetrician, which is involved with deliveries, that cannot be predicted. Absolutely. So it's a juggle. So largely, I have tried to keep my practice to be a little non-emergency based, though I wouldn't say that surgeries can be non-emergency, or miscarriages or ectopics and other surgeries can be just so unexpected. Yeah, but it is very time consuming, very unexpected, and you have to be present for your patients, even when it's not an emergency in our own eyes, but in their eyes, they want the doctor to be present at that time so that their issues are addressed with and they feel less stressed. And of course, the saying is there that if the doctor is as beautiful, you have a beauty queen as your gynecologist, who would be troubled? I think everything goes easy. I mean, आपकी शक्ल देखते ही, आपको देखते ही, वहाँ होते ही आपको ये लगता होगा भैया अब तो I'm in safe hands and it's all done. I'll quote you something which I don't think I have gone on media ever. Okay. Sharing the same. I was working at Sir Gangaram Hospital. This is about 15 years back. Okay. And it was deep at night when there was a surgical emergency which came up, and I was given a phone call in the gynae labor room unit to go and attend to that patient. So I went there to attend to the patient. When I went there, I did everything. Yet, the remark which came from the husband and the mother-in-law of the patient was, "Please send us a doctor, not a model." so aptly said. मैं इसी बात पे आना चाह रही थी कि अब आप जिस प्रोफेशन में हैं, देखिए उसको हम एक गॉड सेंट प्रोफेशन कहते हैं. तो कई बार लोगों की थिंकिंग, लोगों की सोच बहुत डिफरेंट है. आप रैंप में भी जा रही हैं, आप लाइक ब्यूटी पैजेंट्स भी कर रही हैं और सब कुछ कर रही हैं. तो कभी ये आपके जो प्रोफेशन है इसको भी इफेक्ट करता है? Like people question you have been doing so many of these things. You are into fashion, you're into glamour, and would you justify your profession also? So do these questions come up? To be frank, before I cracked the beauty pageant and this tag got onto me, which was barely a month and a half, yet for the past 15 years I was being asked the same question. Are you into medicine or are you into music? Are you into medicine or are you into inspirational talks? Are you into medical practice or are you into academics? Are you into academics or are you into medical research? So, I used to, and then when I did medical law, the question, are you a lawyer? Or maybe better so, you should become a lawyer and quit medicine. So I asked a few people. Then I questioned myself. I said, if I do something good, and I set a standard, you think that's the only thing I can excel in. Exactly. So when my music albums came, I mean, even back home, my people questioned me, are you going to
pursue music as your Music first as your profession? profession, yeah. Are you going to give up medicine? I said, the thing which is ingrained in me and the thing which has taken me that far Far. or given me that self-belief or the confidence is my core profession. Bereft of my core profession, I may not have even thought of going and getting those things with that much self-belief. Self-belief, I have never envisioned from grade 5 a phase where I was to be practicing anything but medicine. Yeah. And so when from grade 9, 10th onwards you start preparing for your medical entrance exams, you have never thought of anything but Anything else this. besides this? Absolutely. Everything else that has come or which had been there even before, whether it was music, dance, and incidentally it was Kalinga Sundi from Sundari. Odisha, and the first dance form that I learned was Odissi. Odissi. And that I learned from the age of 4 or 5 till I was 9 or 10 years of age. So yes, that was the first dance form, and then came Bharatnatyam, and then came Kathak from Jaipur Gharana, and that was the short journey, I would say. डॉक्टर पूजा, एक बात और मेरे जहन में आती है कि हम लोगों ने डॉक्टर्स को एक स्टीरियोटाइप कर रखा है कि आप अगर अपने इस प्रोफेशन में हैं तो आप सिर्फ इसी को ही परस्यू करें, आपकी एक लाइफ इसके बियॉन्ड है, इसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं, कुछ फॉलो कर सकते हैं अपने पैशंस को, अपनी हॉबीज़ को। वो हम लोगों के लिए अमूमन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसलिए जब आपको हम देखते हैं कि यू आर इनटू इंस्पिरेशनल वीडियोस, टॉक शोज़ आप करती हैं और आप म्यूज़िक एल्बम्स भी बना रही हैं, तो ये सारी चीज़ें एक एज अ वुमेन आई वुड टेक इट लाइक वी ऑल आर मल्टी फेसेटेड। हमारे पास जितने हाथ हैं हम उतना ही उनको फैलाना चाहते हैं, बट एक डॉक्टर के लिए, एक स्पेशली इस प्रोफेशन में डॉक्टर्स के लिए, उनको बड़ा लिमिटेड सोच में कि डॉक्टर भगवान है, उनको इंसान बनने के लिए हम टाइम नहीं देते हैं। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट, लाइक हाउ कुड और बैड? मैं समझती हूँ कि सोसाइटी ने सिर्फ स्टीरियोटिपिकल नोशन नहीं रखी है, बल्कि हमने खुद के लिए भी स्टीरियोटिपिकल नोशन रखी हुई है। अगर आप इंजीनियरिंग देखें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी देखें, आप लॉ देखें, ये प्रोफेशंस इतने टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, ना तो उनकी जर्नी इतनी लंबी होती है, ना ही वो उतने टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और ना ही सोसाइटी का वो बर्डन ऑफ लुकिंग अप टू यू एज अ पर्टिकुलर इमेज इतना ज्यादा होता है। बाकी प्रोफेशंस में बाकी लोग जो फॉलो करते हैं उस पर इतना नहीं पूछा जाता कि आप लॉयर भी हैं, आप ये भी हैं, आप इंजीनियर भी हैं, आप ये भी हैं, पर मेडिसिन में खासा पूछा जाता है। और ये जो जर्नी है जिसको स्टीरियोटाइप्स की जर्नी बोलते हैं, ये जर्नी मेरे ख्याल से आपकी खुद की बनाई हुई है, क्योंकि आपके पास ही इस प्रोफेशन के आगे टाइम नहीं है। कहते हैं टू दोज इन प्रोफेशंस एंड टू दोज इन पैशंस and to those in many, and मैं कहूँगी कि I am one of those in many, because आप जो चीज़ लगातार 20-30 साल प्रैक्टिस करे हैं, आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे छोड़ सकते हैं? Because it seeps into your system. Exactly. तो और शायद आज आप मेरे से बात कर रही हैं, जब आपने मुझे पहले कभी जाना होगा तो शायद डॉक्टर की तरह जाना होगा, फिर आपने सिंगर की तरह जाना होगा, फिर आपने कोरोना वॉरियर की तरह जाना, फिर आपने इंस्पिरेशनल स्पीकर की तरह जाना। अब ये एक एक करके चीजें लेयर बाय लेयर आ रही हैं। एंड एक्चुअली इट अमेजेस अस ऑल। एंड यू नो, देखिए पता क्या होता है, हम जब किसी को देखते हैं, हमने एक उसके लिए इमेज बना, अच्छा ये तो डॉक्टर हैं, ठीक है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं अरे वो ये भी कर रहे हैं, तो और वो उसका बेसिस बन जाता है। देखिए आपकी जर्नी डॉक्टर से शुरू हुई होगी, अगर मैं सोचती हूँ जैसे जितना मैंने आपको जाना है, तो जब मैंने आपका वीडियो देखा, अरे वो ये भी कर रही है, और वो भी उसी एक लेवल और एक स्टैंडर्ड बना के कर रही हैं, उसको भी ये नहीं कि आप मीडियोकर वे में करिए, कुछ भी करिए। तो ये हमारे लिए, हम सभी के लिए इनफैक्ट बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन है कि अगर एक आदमी, एक इंसान अपने प्रोफेशन में रह कर भी, जो कि बहुत ही गॉड सेंड हम डॉक्टर्स को समझते हैं, और फिर भी वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, लोगों को इंस्पायर करता है कि आप अपने आप को लिमिट मत करो किसी चीज़ में। इफ़ यू हैव पैशन फॉर समथिंग, कम आउट विद इट। एंड एक डेफिनेटली हम सभी को एक स्ट्रेस रिलीफ चाहिए होता है अपनी लाइफ में, कि और दिन में अगर हम एक काम अपनी मर्जी का कर लें जिससे हमें अंदरूनी खुशी मिलती है, तो आई थिंक इट मेक्स योर डे, इट मेक्स योर लाइफ। आई मीन डेफिनेटली बहुत कम लोग होते हैं जो कि पैशन को प्रोफेशन बना कन्वर्ट करते हैं। जैसे किसी का सिंगिंग एक पैशन है और वो उसको प्रोफेशन कन्वर्ट कर देता है। इक्वली बहुत ही कम लोग हैं जो प्रोफेशन को अपना पैशन बना सकते हैं। पैशन को प्रोफेशन बनाना ज्यादा आसान है, ज्यादा देखा गया है।
पर अपने प्रोफेशन को एक पैशन के तरह फॉलो करना वो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो difficult जाता है। और अगर उसमें आपने ये कह दिया कि मैंने 2 पैशंस को 2 प्रोफेशन बनाना है या 2 प्रोफेशंस के लिए मैं पैशनेट हूँ, तो वो वैसे ही है जैसे कि हाथ में एक लाइन जारी होती है, वो आगे जाके बाइफोक हो जाती है। तो लोग कहते हैं 2 प्रोफेशन होंगे आपके। मैंने कहा बारीक वाली भी देखो 2-4 और भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी की यही बारीकियां हमें डिफाइन करती हैं। अब बातें बहुत हुई और जहाँ तक अभी हमने जिक्र किया है कि डॉक्टर पूजा दीवान एक ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर भी हैं, तो कुछ आप हम चाहेंगे कि कुछ हमारे दर्शकों के लिए पेश किया जाए। प्रथम सुमेर श्री गणेश, प्रथम सुमेर श्री गणेश, सानी धनी धप धप म पम गनी रे रे ग ग रे सा ग ग म म ध ध ध म ग म म ध नि सा, प्रथम सुमेर श्री गणेश, गौरी सुत प्रिय गणेश, सकल विघ्न भय कलेश दूर ते निवारे, प्रथम सुमेर श्री गणेश। बहुत सुंदर, सानी धनी ध प ध प म प म ग। बहुत ही खूबसूरत। मैं ये देख रही थी एक डिवाइन जो एक नहीं होता है, डिविनिटी से जब आपको कुछ मिलता है, मैं सोच रही कि मैं आपकी आवाज़ सुनूं, आपकी सरगम में ध्यान था, आपका चेहरा जो इस समय बिल्कुल सरोबार है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सुंदर। और ये एक ट्रेलर था, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, ये सिर्फ एक ट्रेलर था, हमें और भी कुछ अभी सुनने को मिलेगा डेफिनेटली। ग कर ग कर ग ग म ग रे रे सा रे रे सा नी सा नी, ग ग म ग रे ग म प नि ध नि ध नि ध प म ग रे म ग, ग कर ग म ग रे रे सा नी सा नी, ग म प नि ध नि ध नि ध नि ध प प सा सा नि ध प म ग रे म ग, बहुत खूब। गूंजी सी सारी फिजा जैसे बजती हो शहनाइयाँ, सब गाते हैं सब ही मदहोश है, हम तुम क्यों खामोश हैं, साज़े दिल छेड़ो ना, सच है क्यों गाओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, ग कर ग म ग रे रे सा रे सा नी सा नी, ग ग म ग रे ग म प नि ध नि ध नि ध प प सा सा नि ध प म ग रे म ग, ग कर ग। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, टोटली मस्मराइजिंग एंड डेफिनेटली, मतलब अगर मैं आपको सुन रही हूँ, अगर आप कोई मुझे ये नहीं कहता कि डॉक्टर हैं या ब्यूटी क्वीन है या क्या है, तो मैं डेफिनेटली सोचती मैं किसी स्टूडियो में हूँ और एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ मेरे सामने, एक प्लेबैक सिंगर जो है वो मेरे सामने आज कुछ बना रही, बहुत ही खूबसूरत। आई एम श्योर मेरे हमारे जो दर्शक है रियली मतलब वो बहुत ही इंजॉय करेंगे और डेफिनेटली चाहेंगे अगर आपके पास कुछ और है बाय एंड बाय जैसे हमारा प्रोग्राम बढ़ता जाता है, कुछ आपके दिमाग में आए कि नहीं ये हम मुझे सुनाने ही सुने जो आपका पसंदीदा हो, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप जरूर सुनें। और क्लासिकल डांसिंग की जहाँ बात आती है तो आपने बताया कि आपने ओडिसी से स्टार्ट किया, तो और ये भी बहुत एक ऐसा डिवाइन डांस फॉर्म है, और उसके बाद यू शिफ्टेड ओवर टू भरतनाट्यम, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइक हाउ वाज इट लाइक? देखिए बचपन से म्यूज़िक और डांस दोनों सिखाया जाता है, पर अंत में समय की कमी होती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका गुरु। ज़रूरी नहीं है कि आपका संगीत में ज़्यादा रुचि है या संगीत में आप ज़्यादा प्रबल हैं या आप डांस में, अपॉर्चुनिटी, सही शिक्षा और कंटिन्यूटी, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो हमारे ओडिसी के सर थे, वो हमें सिखाते थे। आज जब मैं योगा करती हूँ, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरे पॉस्चर्स हैं,
मुझे हमेशा बोलते हैं कि बड़ी अच्छी कर रहे हैं आप, बड़े सरल तरीके से कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहती थी कि वो बचपन में हम गिरते ही रहते थे और वो एक एक घंटा बस एक चौका में वो हमें बैठा देते थे कि इसी पोजीशन में बैठो, अभी ऐसे बैठो, वो स्टेबिलिटी, वो पॉस्चर। तो वो उड़ीसा वापस चले गए। अच्छा। और फिर कुछ समय के लिए भरतनाट्यम आया और फिर श्रेय जो कथक का था और जो मेरे कोर डांसिंग स्टाइल है उसमें बाय डिफॉल्ट कथक के ही नुआंसेस हैं। और वो श्रीमती उर्मिला नागर जी मेरी गुरुआइन रही और उन्होंने मुझे भजन भी सिखाई और उन्होंने मुझे कथक भी सिखाया। और जब तक मैं उस लोकेलिटी में रह रही थी, उस 1 साल 1.5 साल का इतना इम्पैक्ट रहा। फिर मैं उस लोकेलिटी से शिफ्ट आउट हुई तो भी मैं जयपुर घराना कंटिन्यू करती रही। जब तक आपको पता है 10वीं नहीं आ जाती तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। डॉक्टर पूजा दीवान, आपका सोलो एल्बम जो निकला है सुमिरनी, तो कुछ हमें उस बारे में बताइए। आपकी म्यूजिक जर्नी जो शुरू करी आपने, तो कुछ हमारे दर्शकों को इस बारे में भी बताइए। म्यूज़िक जर्नी बचपन से ही शुरू हो गई थी। बचपन से ही मुझे शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी सिखाया जा रहा था। बीच में कहीं ना कहीं छूट जाती थी, टूट जाती थी, तो बॉलीवुड आ गया उसको सस्टेन करने के लिए। फिर कॉलेज आ गया उसको सस्टेन करने के लिए, कॉम्पिटिशन्स में जाने के लिए। और फिर आया क्लोज अप अंताक्षरी जो अनु कपूर का होता था। उसमें भी एक स्पेशल एडिशन था जो कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, MBA ऐसे कॉलेजेस का था। उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज को रिप्रेजेंट किया। कहीं ना कहीं कुछ रुझाव मेरा सारेगामा में भी रहा, तो ऑडिशंस तो हो गए, आगे परस्यू नहीं कर पाए क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। और वो फाइनल ईयर और इंटर्नशिप का टाइम था, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। वो ज़माना था जब लोग SMS पता ही नहीं था हाँ जी। तो उसके बाद में म्यूजिक चलता रहा, कभी रुका नहीं। चाहे वो सोशल गैदरिंग्स पे था, चाहे वो स्टेज परफॉर्मेंसेस थी। बट फाइनली ऑफिशियली मैंने अपनी डेब्यू एल्बम सुमेरनी टाइम्स म्यूजिक के प्रतिष्ठित लेबल के तहत रिलीज करी, विच वाज the first debut album. It had 10 bhajans across all deities, मतलब निर्गुण और सुगुण दोनों टाइप के थे, भक्ति काल के साथ रिलेटेड थे। वो करी, उस पर टाइम्स म्यूजिक ने काफ़ी हेल्प करी। लैंडमार्क जो उस वक्त का ब्रांड था, उन्होंने उसका लॉन्चेस कराए बॉम्बे में, दिल्ली में। और फिर उसके बाद म्यूज़िक चैनल बना जो काफ़ी देर तक काफ़ी लेटेंट था। फिर कोविड टाइम में रिजुविनेट किया मैंने, क्योंकि कोविड टाइम में हम लोगों ने जो पहला लॉकडाउन था 21 दिन के 21 गाने, उसमें हमने हर रोज़ एक गाना बनाने का ऐसा अलग अलग लोगों के साथ एक संगीत यज्ञ किया। एक ही कवि लिख रहे थे और एक ही संगीतकार बना रहे थे, पर गाने वाले अलग। और आपको हैरत होगी कि 550 गाने बन गए। और वो लॉकडाउन एक तो था, वो चलता रहा। उसमें 100वें गाने पे लेट कोकिल कंठी लता मंगेशकर जी का आशीर्वाद मिला और उनके कहने से उषा मंगेशकर जी ने उसको गाया। काफ़ी बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग अक्रॉस द कंट्री ने गाया। मैंने भी 3 गाने गाए। उसके 3rd सीजन में मैंने एक सोलो अनूप जलोटा जी के साथ गाया। आप ये बोल रही हैं, आप देखिए, आपको नहीं दिखेगा पर मेरे रोंगटे खड़े हैं। जी जी जी। और फिर उसके बाद और भी कुछ इम्पॉर्टेंट और लेजेंड लोग हैं जिनके साथ मैंने गाया है, जो अभी रिलीज़ होना बचा है। तो इस तरह से रहा है। मैंने एक फ्यूजन एल्बम खुद से रिकॉर्ड करी है, एक भजन की एल्बम और खुद से रिकॉर्ड करी है। ट्रेंड चेंज हो गया है सिंगल्स के रिलीज का, तो टाइम लगता है आते आते। मैं सोच रही हूँ कि ये सारा आपने इसी जन्म में किया है या पिछले 2-3 जन्म को आप मुझे इकट्ठा बता रहे हो? एक हमारे जानकार हैं, तो जब मैंने पैजेंट जीता और जब हम वापस आ रहे थे, तो उनका ये कहना था कि एक नया देश आपके लिए ढूंढते हैं जिसमें 1 घंटे में 24 नहीं 48 घंटे होंगे, ऐसा देश भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम सब कहते हैं कि हम सब की ना एक बकेट लिस्ट होती है, ठीक है? तो आपके लिए बकेट तो अब काम नहीं आएगी, आपके लिए पूरा टैंकर लाना पड़ेगा जिसमें हर रोज एक नई कुछ ना कुछ नया जुड़ता चला जाएगा।
और आपने पीएचडी भी कर रखी है, जी। उस किस विषय पे कर रखी है और किस तरह आपने उसको टाइम निकाला इतने सब के बावजूद और पीएचडी परस्यू करी आपने? MBBS और PhD दोनों होने की वजह से डबल डॉक्टर कहते हैं। डबल मुझे तो डॉक्टर ऐसे कहते लगता है कि जेम्स बॉन्ड 007 जैसा कोई नाम मुझे दे दिया गया है। PhD मैंने बायोटेक्नोलॉजी में अलॉन्ग विद मैनेजमेंट एंड लॉ एज अलाइड सब्जेक्ट्स करे हैं। Okay. और ये मैंने करा है जो इनफर्टिलिटी ART असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक्स के IVF यूनिट्स हैं उनके Okay. जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं उनके क्राइटेरियाज को बेंचमार्क करने के लिए इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से किया, क्योंकि वेस्टर्न बॉडीज तो हैं ही जो नहीं, उसको बेंचमार्क करती बना हैं, के मैंने रखते हैं। उसके हिसाब से किया। Okay. साथ में जो ह्यूमन रिसोर्स नर्सिंग है उनके क्या एलाइड रोल्स हैं Okay. और उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई है, और जो हमारे कंसेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लीगल अग्रीमेंट्स हैं, उसमें मैं क्या आइडियल समझती हूँ वो सब मैंने उसमें इनंशिएट किया है। मैं ये चाहती हूँ आप अपना हाथ हम सभी दर्शकों पर रख दें आशीर्वाद के स्वरूप, कि कहीं ना कहीं अगर आपका कुछ एक अंश, आपकी इतनी जो पढ़ाई, इतनी मेहनत, इतना पैशन आपकी लाइफ में है, सब कुछ किसी न किसी तरह से हमें टच कर जाए तो हम भी कहीं ना कहीं एनलाइटन हो जाए। बिल्कुल एब्सोल्युटली। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कही थी, पर मैं ये कहूँगी कि हर इंसान की कोई इंस्पिरेशन होती है। कोई एकेडमिक इंस्पिरेशन होता है, कोई लाइफ में डूअर होता है। हर एक पड़ाव पे आपकी नई नई इंस्पिरेशन Inspirations होते बनती हैं, हैं। बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि वो आइकन्स हैं आपकी लाइफ में हाँ। या इंस्पिरेशंस हैं, पर जब आप किसी इंसान को करीब से जानते हो तो मेरे हिसाब से बहुत से लोगों में से बहुत सारी अलग अलग इंस्पिरेशन आप ड्रॉ करते हो। जो एकेडमिक इंस्पिरेशन थी वो मैंने अपने एक ग्रैंड अंकल से ली, जो कि 4-5 फील्ड में PhD पे थे, TH भी थे, और वो आर्मी ऑफिसर भी थे, वो सर्जन भी थे। 3-4 फील्ड में तो उन्होंने मेडिसिन में ही Medicine भी। स्पेशलाइज किया हुआ अच्छा, था, बहुत लॉयर भी थे, सब कुछ ही थे, मतलब इतनी सारी थी। तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे वो एस्पेक्ट समझ में आया, और वो लास्ट ईयर्स तक, मतलब 90+ में थे, लास्ट ईयर्स तक कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे। उस जमाने से लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, रियल प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे थे, और उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी किया उसको उन्होंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। 40 That is साल so उन्होंने important. चैरिटी करी, 40 साल सोशल सर्विस करी, और 40 साल में उन्होंने 30 स्टैंड अलोन हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए इन द सिटी एंड अराउंड द सिटी, और वो उसमें जाते थे, लोग उनके साथ जुड़े, और मैंने देखा तो मुझे मेडिसिन की फील्ड की इंस्पिरेशन उनसे नहीं मिली। वो तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाइड करा, उनकी डिजायर थी, फिर सोशल सर्विस की इंस्पिरेशन उनसे मिली। तो लाइफ में हर फेज में जो इंस्पिरेशन है, और जितना जियो उसको एक यूजफुल तरीके से जियो। तो नोबिलिटी और मेडिसिन के साथ नोबिलिटी, और सोशल सर्विस, मेडिसिन और नोबिलिटी, मुझे एक चीज़ ये समझ आई। और अपने आप को हमेशा अपडेटेड रहने के लिए आप या तो अकेडमिक्स या एजुकेटर या रिसर्चर, किसी न किसी फॉर्म में आपको एजुकेट अपने आप को करना है, चाहे आप न्यूज़पेपर से करो, चाहे आप मीडिया से करो, और फिर अपने में पैशन रखने के लिए, ठीक है, उन सब के तरफ। अगर कोई हॉबी बाय चांस मेरे साथ थी, अब ब्यूटी पैजेंट जो था वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे अंदर कोई ब्यूटी होगी और कभी मैं पैजेंट पे जाऊंगी और कभी मैं रैंप चलूंगी, या फैशन क्या होता है। मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता तो मैं हमेशा कहती थी फैशन वो है जो हम कैरी करते हैं और जो हमें कॉन्फिडेंस देता है और सेल्फ बिलीव देता है। और मेरे लिए ये तो कभी था ही नहीं कि मतलब मैं किसी के क्लोथ्स बनाए हुए शोकेस करूंगी और कभी मैं एक ब्यूटी पैजेंट में जाऊंगी, क्योंकि हमें तो हमेशा यही बताया गया कि ब्यूटी जो होती है वो आपकी करनी से होती है, और इनर आउटर ब्यूटी ये सब तो मुझे समझ ही नहीं थी। मुझे ये पता था होलिस्टिक पैकेज होना चाहिए। और आज अगर मैं वो पैजेंट जीती हूँ तो मैं यही समझती हूँ कि होलिस्टिक पैकेज एंड एसेंशियल अपब्रिंगिंग एंड एनवायरमेंटल कंडीशनिंग मुझे वहाँ तक लेके गई जहाँ तक मैं पहुँच पाई। और मेरे लिए जितनी हैरत है मुझे लगता नहीं दुनिया को इतनी हैरत है, मुझे तो बहुत हैरत है। They say that a cultured mind, always, cultivates a nourished thought. तो डेफिनेटली मतलब आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आपकी जो सोच है, इट ऑल रिफ्लेक्ट्स ऑन द पर्सन दैट यू आर इन द इनसाइड एंड द आउटसाइड। डेफिनेटली प्लेज अ ह्यूज रोल। एंड आज हमारे सामने कोई पूजा दीवान नहीं बैठी है, ये एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, और इनफैक्ट हम सब लेडीज़ के लिए भी। जैसे एक हाउसवाइफ को अगर मैं सोचती हूँ कि
हम सभी के अंदर लाइक वी आर bestowed with so much talent, latent talent, which we need to realize and release. एंड हमें सबसे पहले अपने आप को एम्पावर करना है खुद के लिए कि ऐसा मेरे ख्याल से मैं नहीं समझती कोई भी संसार में है जिसमें टैलेंट नहीं हो. बस हमें उसे अपने आप में पहचानना है और उसको बाहर निकाल के लाना है. एंड डेफिनेटली जब हमारे सामने डॉक्टर पूजा दीवान जैसी इंस्पिरेशन हो तो वाई नॉट. एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंस्पिरेशन हर एक से मिलती है, हर एक के से एक अलग, हर एक का अपना एक ऑरा है जो हमें कहीं ना कहीं टच करता है और उससे हम इंस्पायर हो सकते हैं. एंड डेफिनेटली आज का जो ये सेशन रहा बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही इंकरेजिंग एंड बहुत ही मेरे लिए पर्सनल लेवल पे आई एम रियली थैंकफुल डॉक्टर पूजा दीवान फॉर बीइंग विद अस हियर एंड गिविंग अस अ पीस ऑफ योर माइंड. योर इंस्पिरेशन टचेस so many people in so many different ways. Thank you for coming and being a part of Let Urja Talk. Thank you so much for giving me an opportunity to vent out my thoughts, my beliefs, and I believe that you need to inspire before you expire. Absolutely. Yeah. Thank you. Thank you so much.